परमेश्वर की नजरों में भी जो परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण है. You know, in front of God, family is very important for him. कई लोगों को लगता है कि हम अकेले ही अच्छे हैं, You know, many people think that we are alone and it is fine. इसलिए वो अपनी लाइफ को सेपरेट कर लेते हैं. That's why they separate their life from others. और सेपरेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कहीं चले जाते हैं, वो रहते तो परिवार में ही हैं मगर परिवार से सेपरेट हो जाते हैं. You know, separate doesn't mean that they are separated from their family physically, but they are in the family, but through their mind they are separated. सो परिवार में रहते हुए सेपरेट होने का मतलब है अपने आप को आइसोलेट कर लेना सब रिलेशनशिप में. You know, being in a family and to separate yourself, it means that you are isolating yourself from the family itself. आपको पता है जब आप अकेले हो जाते हैं, You know, when we are alone, जब आप सेपरेट हो जाते हैं, when we are separated, शैतान को और अपॉर्चुनिटी मिलती है आप पर अटैक करने के लिए. you know, devil gets an opportunity to attack you. इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अलग होते हैं. That's why in Bible it is written that people are separated by their desires. कई लोगों को यहाँ पर कोई है ऐसा जिसे अकेले रहना अच्छा लगता है. Is there anyone present here who likes to stay alone? कोई है यहाँ पर जिसे अकेला रहना अच्छा लगता है. Is there anyone who likes to stay alone पत्नी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, and no family member should disturb us? पत्नी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. I told you church, जब भी मैं पत्नी की बात करूंगा ये ट्रांसलेट नहीं करेगा बंदा. Wife should not disturb me. सो कई लोगों को लगता है कि पत्नी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना Many चाहिए. people think that their wife should not disturb them. कई लोग को लगता है कि पति ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना Many चाहिए. people think that their husband should not disturb them. कुछ लोग को लगता है कि बच्चों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना And some चाहिए. people think that their children should not disturb them. और कई लोग चाहते हैं कि मैं बस सेपरेट रहूं, मेरी फैमिली है मगर मैं सेपरेट रहूं. And many people think that or they wanted to be separated from their family. मगर आपको पता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अकेले रहें. But God doesn't want you to stay alone. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है. That's why when God saw Adam and then he thought and he said that human beings should not stay alone. इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को देखा तो प्रभु को पता था इसका अकेले रहना अच्छा नहीं है. इसका मतलब यह है इसका अकेले रहना सेफ भी नहीं है. You know, when God saw Adam and he was alone and he thought that he should not stay alone because it is not safe for him. सो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अकेले नहीं, आप एक परिवार में रहें. That's why God doesn't want to stay you alone, but he wanted you to stay in a family. मैं इस बात को कई बार कहता हूं कि परिवार एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. You know, many times I tell that family is a big blessing for you all. हालेलुया. Hallelujah. कई लोगों को लगता है कि यदि एक लड़का है, You know, many people think that if there is a boy, मान लीजिए कि थॉमस है, imagine if a Thomas, तो थॉमस को लगेगा कि प्रभु चाहता है कि मैं अकेला ना रहूं, you know, if Thomas thinks that God doesn't want me to stay alone, तो मैं अपने दोस्त के साथ रहूंगा. so I will stay with my friends. सो शादी होने के बाद भी यदि थॉमस अपने किसी फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, Even after getting married, if Thomas is trying to stay with his friends more, वो एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. that is a wrong combination. पता है क्यों? You know why? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया You know, because when God created Adam, तो प्रभु ने जब उसे देखा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, you know, when God saw him, he was alone and it is not safe to stay him सो alone. एडम के साथ ईव को दिया, स्टीव. ओके ठीक है. Hallelujah. एडम के साथ ईव को दिया, That's why God gave him Eve. एडम के साथ स्टीव को नहीं दिया. God didn't give him Steve. अब हमें अरे यार ठीक है सब बोलो, आदम के साथ हवा को दिया. आदम के साथ हवा को दिया. हालेलुया. अब मेरी हिंदी समझ में आ रही है सबको. Can you understand my जब English? परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, When God saw that Adam should not stay alone, तो प्रभु से एक भाई दे सकता था, and then God would have given him a brother, या प्रभु से एक बच्चा दे सकता था, and God would have given a child. प्रभु से फ्रेंड दे सकता था. God would have given him a friend. मगर आपको पता है कि परमेश्वर ने आदम को हवा दी, But then God has given Eve to Adam. क्योंकि आदम को परिपूर्ण या संपूर्ण करने के लिए हवा की जरूरत थी. You know, to complete Adam, there was a necessity of Eve to आप fulfill it. मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया. Hallelujah. सब बोलो मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं. मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं. आज जितने जवान हैं बड़े खुश हैं. सब The बोल रहे हैं, मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है. मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं. मगर बाइबल में लिखा हुआ है कि हर बातों का एक समय है.
You know, in Bible it is written, for everything there is a time. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? बहुत ध्यान से सुनिएगा। Now try to listen carefully. प्रभु चाहता है कि कोई भी व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ रहे। You know, God wanted everyone to stay along with his family. हर एक व्यक्ति अपने परिवार से कनेक्टेड रहे। You know, everyone should be connected with their families. इसलिए आप एक बात को नोटिस करेंगे कि प्रभु आपको जोड़ना चाहता है और शैतान आपको तोड़ना चाहता You है। know, that's why God always wanted to connect you with the family, but Satan want to break you or break your families. इसलिए जो पहला अटैक शैतान का था वो एक फैमिली पर था। That's why Satan's first attack was on a family. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? आदम और हवा एक परिवार थे Adam and Eve was a family. और उस परिवार को तोड़ने के लिए शैतान आया। And to break that family, Satan came there. हालेलुया। Hallelujah. इतना ही नहीं, जब आप इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार भी एक परिवार में किया। Not only this, when you'll see that Jesus has shown first miracle in a family itself. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many of you will understand what I'm saying? सो प्रभु का टारगेट है कि आपको एज ए फैमिली ब्लेस करे You know, God's target is to bless you as a family. और शैतान का भी टारगेट है कि आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करे। And Satan's plan is also to destroy as a family. पता है कई लोग अपने आत्मिक जीवन पर बहुत ध्यान देते हैं। You know, many people, they try to focus on their spiritual life. वो 2 घंटे प्रार्थना करेंगे, They will pray for 2 hours. वो 30 मिनट्स प्रार्थना They करेंगे, will pray for 30 minutes. वो बाइबल पढ़ेंगे, They will read Bible. वो सारी चीजें करेंगे, And they will do everything possible. मगर वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं रखेंगे। But they will not focus on their families. आपको बताएं 2 घंटे प्रार्थना करने से बेहतर है आप अपने परिवार पर ध्यान दें। You know, to pray for 2 hours instead, you need to focus on your family. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रार्थना नहीं करना है। It doesn't mean that you don't need to pray. इसका मतलब ये है आपको परिवार को लेकर प्रार्थना करना But है। then it means that you need to stay with your family and pray. अब है मेरे साथ। Are you here with me, church?